my lovely bubblies, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching Racism Against Indians is a Reality. Yeah, it's from the channel Abhi and Niyu. I'll put the link to the original video in the description below and a link to their channel. Guys, if you aren't, subscribe to them at the moment, do make sure you do so. It's their video at the end of the day, and they have got 3.28 million subscribers. I'm sure you guys already know they probably don't need us like doing their tarif and everything like that, because so many people are already, most of our viewers have probably been watching and enjoying their videos for a very long time. We have reacted to them before as well, guys. If you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out the channel, which is called Our Touch. Links will be in the description below. And thank you to Kalpesh for sending us the link. I did think, I wanted to do it because obviously the title itself, Racism Against Indian Reality. But then again, I have seen their videos before, and they are very much, their videos are very educational and inspirational. And not only that, they tell you stuff that you wouldn't normally see or hear on other social media platforms or on the news and stuff. So it's like behind the thing about India, about Indians, about, various other things. So I know whatever it's going to be quite, yeah, educational and interesting. Here we go, ready? Hi, I'm Niyu and I'm an Indian woman. हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5-star होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया। हमें और इंडिया को गालियाँ दी and this is how we fought back. इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए भी। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में हैं। कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल। ये एक 5-star होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा go back to India you dirty Indians. He said I will send you back to India, go out from here and go back to India. It's like ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक, तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and उसके आंखों में दिख रहा था that he is really angry about something. तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कन्फ्रंट करूं, कि पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। बट Niyu stopped me over there, she just held my hand and we went out from there. वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। Nobody did anything. लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था and I should have actually stopped there and taken his photo, but सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुंची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि इस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। He said कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ so that we can see the video and then he said something that was really annoying. I don't think that's necessary. Excuse me? Like I don't understand. आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? You know, like who are you to decide? All I know, he could just be roaming around in the hotel. At this point हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 की जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 की फाइट बैक का। हमने वहां के उस बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहां से निकल जाए, वहां पर कुछ बवाल ना करें,
बिकॉज वहां पर फॉरेनर्स थे, व्हाइट पीपल थे, और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए। So, हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली, तब वहां पर तो कोई नहीं था। तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो यू नो कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है? सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया। सी, जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फोन लगाया एंड फोन करते रहे लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा। सो आई कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफिस। सो पीपल फ्रॉम द एम्बेसी टोल्ड अस द सऊदी अरेबियन एम्बेसी इज इन्वॉल्व्ड बिकॉज मोस्ट लाइकली द होटल मेड अ कंप्लेंट अबाउट अनरूली बिहेवियर और एम्बेसी के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जिस बंदे ने हमें गालियां दी, सिर्फ हमें नहीं इंडिया को गालियां दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। द पर्सन हु सेड गो बैक टू इंडिया इज बीइंग थ्रोन आउट टू सऊदी एंड आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। सी, आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, दैट वी ऑनेस्टली डोंट नो और हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट दिस फील्स लाइक विक्ट्री। व्हाई दिस वीडियो? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस हैं। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं, अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत, और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन। सो व्हाट्स द पॉइंट? वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। सी, आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज आल्सो कॉमन, इट हैपेंस। नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स। बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहां पे किसने क्या बोला, what were the names of the people involved, ये सारी चीजें याद रखना बहुत जरूरी होता है एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं।
हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, so that he doesn't take a punch lying down. और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है when you are outside the country, please do not hesitate to contact the embassy. Embassies outside India, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल. लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े. At the end of this video, I really want to tell you guys that Niu is really brave. She's a fighter and nobody should mess with her ever, in India or outside. Thank you so much for watching. क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है. Manja met us later and showed us the passport of the person who picked that. They have to sponsor our meals as an apology. We said no, a female cannot silence us. Fight racism. Well done, guys. Wow. Well, I just want to also add, I know they gave the other points of, like, you know, it doesn't just happen to Indians from India. It happens to Indians from all over. Just to add that on top. It does. That it's not just Indian, just because we're from we're from Britain, or there's Indians from America or Canada or whatever. You could go to other countries, and it's not just, oh, you go to Britain or you go to America or you go to Canada. You could go to some countries where the other people there, like Egypt, or that the color of the skin is more or less the similar. It's just that our languages or our culture or, you know, our beliefs and stuff are different, but the color could be the same. So it's not always about, you go to a country and you go, oh, it's Gori or it's Kale or it's Indian or this, that, or, you know, they don't like our color or they don't like our religion or they don't like where we've come from, because it's not sometimes even to do with that. It's just racism can just be, you know, like I said, and it's not just about this guy, this person, obviously they said had mental health, but it's not always that case either. And not only that, on top of that, you could go to another country and it's not always the people in that country. There's sometimes people from other places who, you know, traveled and also will be there, and you don't expect them, and their views and opinions are totally different to the country that you're in or the people that you're around. That can make you feel like they said. And it's not easy being in that situation. I know, like, for them, they dealt with it really well. I mean, like I said, I would probably deal with the same way, but I've been a police officer for 20 years, so I've known when people come into your face and they say things, how to de-escalate the situation and stand there and you talk. And my whole job has always been to clock what's going on, who's wearing what, what's been said, you know, everything like that. Scrappy Doo here would be like, let me out, let me out, you know what I mean, kind of thing. Should we just like brave in a different way? But there's two of us, like, you know, always. But you would have also been like, okay, it's happened, let's just leave it at that, yeah? Where I think fair play on her that she'd gone to that extent to have him, you know. I would have just gone, It would have been like, oh God, it's happened, whatever. But I mean, the only thing I would have done is to make people aware, just because it could happen to somebody else there. Like, look, this person's doing this. You don't really think about that at that point. Oh, you know what? You should be able to ring the embassy. So it's awareness, like you. Yeah, they've done the right thing, and like I said, also what they did was not only made you aware. It's not just about Egypt, but made you aware when you're going out. These kind of things happen, how to deal with them, even though it might not be easy, because you do want to stand up for yourself. Sometimes you want to, you know, red mist comes. They always say the fight or flight. You know, at the time, you know, the adrenaline rush and everything, and you know, you can basically go, well, you know, I having you say this or do this. I've got my wife here. You could feel, you know, that I need to stand up for this and all that. But then you don't know what the situation, who this person's with, what weapon, like they said. You don't know where to go. And it's not even that as well. You put your situation, if you were there together with the children as well. Different. And you don't even know how those people in the hotel or other people around, who would they be supportive towards? Do you know what I mean? So you don't even know that. You could fight in a certain another way, but you don't know how the police and everyone's going to take everything, because it is the way it is. So how they dealt with it, what they did, and then making sure everyone else was aware. They showed what, you know, decent, kind, well-mannered, well-thinking Indians are, or people are. You know, that you can deal with any situation in a cool mind and in an intelligent, mature way. And still, you remember, it doesn't matter what colour you are, what religion or background you are, when you are in places and you're doing what you're doing, you represent everyone else around you. So, you know, and they did that exactly.
no one can ever say that, you know, these Indians did anything that, you know, put anyone in danger or threatening behaviour or anything. That was the video, guys. Guys, like I said, check out their channel. Don't forget to like, share, subscribe, and let us know what else to react to, and we'll see you on the next one. Take care, see you soon. Bye. Bye.